थे लास्ट में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे ना। नेक्स्ट इज इम्पल्स मोमेंटम। इम्पल्स मोमेंटम, see, many a times we are not interested in rate of change of momentum with respect to time, because वो टाइम, जिस टाइम के लिए फोर्स लग रहा है वो उसको मेजर करने में और कुछ चीजों में कंफ्यूजन हो सकता है। तो मेनी टाइम्स वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन मेजरिंग change in momentum. Good. Many a times we are not interested in measuring rate of change of momentum with respect to time, but we are interested in change in momentum. जैसे आपको एग्जांपल बोलोगे तो सपोज ये बॉल आया, राइट, देयर इज अ बैट्समैन हु हिट्स द बॉल, अब ये जो टाइम में इसको हिट करता है, द टाइम इज वेरी शॉर्ट, द टाइम ऑफ इम्पैक्ट इज वेरी शॉर्ट, एंड दैट टू अगर आप ग्राफ बनाओगे फोर्स वर्सेस टाइम का, दिस इज फोर्स एंड दिस इज टाइम, द ग्राफ इज नॉट अ कांस्टेंट ग्राफ। वो क्या होता है, बॉल जैसे आ रही है, ये बैट में प्रेस होती है तो इनिशियली फोर्स जीरो है, जैसे जैसे बॉल डिफॉर्म होते जाता है फोर्स बढ़ते जाता है, force increases up to a certain maximum value and then again it starts decreasing, and this time of impact itself is very small, maybe of the order 10 raised to minus 2 second and all. So we cannot measure it, right? We cannot measure it. So sometimes we are not interested in dp by dt, instead we are interested in change in, that is delta p, change in momentum. So change in momentum क्या होगा, integral of f dt, that is final momentum minus initial momentum is t1 to t2 integral f dt. ये कहानी। Now this change in momentum is read as impulse, यही impulse है आपका। So what is impulse? Impulse is change in momentum, change in momentum. Impulse of a force is defined as, J से usually denote करते हैं, and it's a vector quantity. It's F by F into T, the average force into T. Yeah, J is F dt, right? Integral F dt. ये हो गया आपका impulse. So impulse is final momentum minus initial momentum. Okay. Hello. Hello. Yes, sir. So impulse is final momentum minus initial momentum. So बोलोगे सर ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, यहाँ पे क्यों पढ़ा रहे हैं, राइट? So थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी दूसरे मेथड से कर सकते थे बट थोड़ा सा इजी हो जाता है ये प्रिंसिपल से करने में। तो इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल बोलता हूँ, इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, प्रिंसिपल along any direction, along any direction, momentum initial plus impulse gives final momentum. This is impulse momentum principle. Got it? This is impulse momentum principle. Right? ये कब ज्यादा यूज होता है, जब भी पूरे फोर्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट बड़ा अजीब सा है, इट्स नॉट मेजरेबल, तभी भी अप्लाई इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, राइट? दो इट्स नॉट लाइक कि यू कैन नॉट सॉल्व दीज क्वेश्चंस जो भी हम लोग करने वाले हैं इस प्रिंसिपल से विदाउट यूजिंग दिस प्रिंसिपल, बट इट्स गुड इफ यू डू यूज इट, राइट? सो लेट्स टेक सम क्वेश्चंस. फर्स्ट वन,
तो इस प्रिंसिपल से हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. हाँ, we can apply impulse momentum principle along any direction. So एक क्वेश्चन है, there's a string, ये height दिया 1 meter. If I release this, this falls down, right? This mass is 1 kg. There's a ball or object of particle of mass 1 kg. It's tied up to a string and it's folded by 1 meter. Now, if I release this, then find impulse of tension the moment string becomes taut. Right? So bounce नहीं सोचना है आपको. String हो गया taut. Inextensible string है. Right? This is inextensible string. The moment it becomes taut, जब खिंच जाता है, तो उस मोमेंट में इम्पल्स कितना लगाएगा वो टेंशन वाला फोर्स, वो बताना है आपको. ज्यादा टाइम ले लूंगा, 2 मिनट देना दोनों लो, सोचो. ठीक है, फिर मैं सॉल्व करूँ. आया किसी को? नहीं यार, चल आई एक्सप्लेन. सी, द मोमेंट स्ट्रिंग बिकम्स taut, तो यहां से वो यहां फॉल हुआ. दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर. इसको रिलीज किया तो ये यहां से 1 मीटर और 1 मीटर और नीचे जाएगा. So the moment string becomes taut, the fall in the ball is or particle is 2 meter. So velocity, initial velocity would be what? Root 2gh. याद है shortcut gravity का वाला? 2 into 10 into 2. That is 2 root 10. So initial momentum is minus 1 into 2 root 10 j cap. Final momentum is 0. It comes to rest, right? So impulse is final momentum minus initial momentum. So this minus this is 2 root 10 j. That's it. So impulse of tension is 2 root 10. नहीं था आसान. It's very easy question. Impulse निकालने बोला आपको, तो impulse is what? Change in momentum. So initial momentum you can calculate, final momentum you can calculate. Subtract कर दो, that's it. There's a ball which is sliding. Neglect rolling and all. This is sliding. सब सीधा आ रहा है, right? This angle is theta, right? It's moving velocity v. Now, ball strikes the incline elastically. और elastically क्या है? Ignore that. That this kinetic energy remains conserved. Kinetic energy conserve करके. So what do you have to tell us? First one, impulse of incline. ये निकालो. क्या निकालना वो? Impulse of incline. ये पहले निकालना. समझा क्वेश्चन? क्वेश्चन वापस बताइए ना. ये कैसा फ्लोर है? हॉरिजॉन्टल फ्लोर, और ये इंक्लाइन है थीटा एंगल. इधर से एक बॉल आ रहा है v वेलोसिटी से, टकरा के सेम काइनेटिक एनर्जी, मतलब ऐसे आया v और इधर रिटर्न
जाएगा v स्पीड से, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो वेलोसिटी विल रिमेन सेम. If it approaches with velocity v, then it returns with a velocity v. तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व. तो नेचुरली इसने कुछ इंपल्स इंपार्ट किया होगा. अभी मैं आपसे बोलता फोर्स, तो फोर्स इस केस में कॉम्प्लिकेटेड है. फोर्स कैसे निकालोगे? चेंज इन मोमेंटम आप निकाल लोगे, टाइम है नहीं आपके पास. तो ऐसे क्वेश्चंस में इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू डील विद इंपल्स. तो अभी आपसे पूछा मैंने इंपल्स ऑफ इंक्लाइन. तो इंक्लाइन इस बॉल पे कितना इंपल्स इंपार्ट करता है? ओके, सबसे पहले आप ये सोचो, जो इंपल्स इंक्लाइन बॉल पे जो इंपल्स लगाएगा वो किस डायरेक्शन में लगाएगा? अगर फ्रिक्शन और रोटेशन नहीं है तो आप सोचो ये बॉल पे ये बॉल किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? विल इट एक्सर्ट फोर्स इन दिस डायरेक्शन? इंपल्स किधर लगेगा? ये बॉल आके टकराए इससे, तो इंपल्स किधर लगेगा? राइट साइड लगेगा? नहीं, बॉल कभी भी अपने नॉर्मल डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएगा. रिमेंबर, जो इंपल्स होगा वो नॉर्मल डायरेक्शन में ही होगा. अब आप बोलोगे बट सर चेंज तो हॉरिजॉन्टल में हुआ. आप सोचो अगर ये नहीं होता तो क्या चेंज इसी डायरेक्शन में होता? नहीं, वो तो रिजल्टेंट है इस डायरेक्शन में. नहीं समझे? देखो, बॉल एक इधर बॉल है, ठीक है, आप इस पे सीधा थ्रो करोगे ऐसे, तो ये बॉल जाके टकराएगी, तो फोर्स ये इधर पे ऐसे लगेगा. अगर आप इसको ऐसे फेंकते हो तो ये इधर जाके टकराएगी, तो ये ऐसे जाता है. अब वो ठीक है, अब वो यहाँ पे भी कुछ रखा हुआ है तो फिर कुछ और हो जाएगा. भाई बॉल पे जो फोर्स लगता है वो इधर ही लगेगा, नॉर्मल टू द बॉल, एज देयर इज नो फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन होता तो फिर नेट फोर्स कुछ और डायरेक्शन में लगता. सॉरी, सी ये फोर्स लगता है किसकी वजह से? ये क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट है, ये जाके उस पर कंप्रेस होता है, फिर वहां से बाउंस बैक होता है. तो ये वाला जो फोर्स होता है ना, हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में लगता है. इसका एक कंपोनेंट होगा जो इस डायरेक्शन में लगेगा. हाँ, तो ये बॉल है, ये जे फोर्स जे इज द इंपल्स इंपार्टेड इन दिस डायरेक्शन. दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज कितना हो गया? मुझे रिजॉल्व करना. थीटा 90 माइनस दिस इज थीटा. सो इसका एक कंपोनेंट इधर लग रहा है जे कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर लग रहा है जे साइन थीटा. अब इस डायरेक्शन में जो है, इस डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? इधर आ रही थी बॉल, माइनस mv इधर आ रहा था, प्लस जे साइन थीटा इक्वल टू, बाद में वही वेलोसिटी से वापस चला गया mv. सो जे साइन थीटा इज 2mv, j is 2mv by sin theta. So impulse imparted is 2mv cosec theta. So impulse of incline. No, impulse of incline is this 2mv cosec theta. ठीक है, देख लो, अच्छे समझ लो. क्या आपको समझ में आया? यस सर. नहीं तो मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ. हाँ सर, समझा. Okay. Now second part. Impulse imparted to the ball. बॉल को कितना मिला? Imparted to the ball. Impulse imparted to the ball.
इंक्लाइन ने दिया कितना, इंक्लाइन ने दिया 2 mv cosec थीटा, बट व्हाट डज द बॉल रिसीव्स? सर बॉल तो एमबी रिसीव करेगा ना। 2 mv। बॉल का चेंज इन मोमेंटम कितना है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम इज उधर गया राइट साइड mv, माइनस इनिशियल मोमेंटम इज माइनस mv, सो 2 mv, right? Now next is impulse imparted by the floor. भाई फ्लोर का भी तो फोर्स आया होगा। Impulse imparted to the ball by floor. फ्लोर ने भी तो कुछ इम्पल्स दिया होगा। Impulse imparted on the floor, impulse imparted to the ball by the floor. बस तो फ्लोर कैसे देगा इम्पल्स? सॉरी, फ्लोर कैसे देगा? अगर फ्लोर नहीं होता तो आपको लगता है बॉल रिटर्न आता था? ये जब बॉल यहाँ पर हिट किया था तो इसने इसको इम्पल्स दिया और इसने भी इसको इम्पल्स दिया, J1 इसको J2 ले लेते, राइट? इन दोनों का रिजल्टेंट जाके इधर आया ना, तब तो बॉल इधर आया। हाँ सर। समझा? यस सर। हाँ, तो वर्टिकल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में इम्पल्स मोमेंटम इस पे लगाओ ना। बॉल का मोमेंटम का इस डायरेक्शन में इनिशियल कंपोनेंट कितना है? सॉरी, what is component of initial momentum of the ball in this direction? 0, right? यस सर। भाई इधर तो बॉल वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल थी, तो इस डायरेक्शन कंपोनेंट 0 ना। इम्पल्स कितना इम्पार्ट हुआ? J1, इसको J1 कर देता हूँ, J1 cos थीटा प्लस J2, फाइनल मोमेंटम इस डायरेक्शन में कितना बॉल का? 0, सो J2 इज इक्वल टू J1 cos थीटा, एंड J1 ऑलरेडी निकाल के बैठे हम लोग, 2 mv cosec थीटा इंटू cos थीटा, सो 2 mv cot थीटा, cos बाय sin cot थीटा, आंसर। Is it clear? Yes, sir. Now, there's a smooth table. There's a pulley, massless, frictionless pulley. एक string है, इधर एक block रखा हुआ, और इधर एक block, right? ये इस डायरेक्शन में जा रहा v वेलोसिटी से स्ट्रिंग के अलाउंग, राइट? मतलब इस डायरेक्शन में स्ट्रेट आगे में, इसका मास m1 है, इसका मास m2, राइट? नाउ फाइंड velocity of m1 and m2, the moment string becomes taut. नहीं, इसमें किसका इम्पल्स आएगा? टेंशन का। ये देखो ना, इसका मतलब समझ रहे, इन दोनों की वेलोसिटी तो सेम हो जाएगी, जैसे स्ट्रिंग में टॉट है, जब स्ट्रिंग स्ट्रेच होगा तो इसकी और इसकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी ना। कितनी होगी मालूम नहीं, समझो v1 हो जाएगी। कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? लेट अस अज्यूम v1। तो यहाँ पे जो इम्पल्स इम्पार्ट हुआ वो कितना हो जाएगा? इम्पल्स पर इनिशियल मोमेंटम इसका, इस ब्लॉक का 0 माइनस j
इज इक्वल टू -m2v1, इस पे लगा दिया, राइट। यहाँ पे भी इम्पल्स लगेगा, कितना हो जाएगा, m1v - j इज इक्वल टू m1v1। ये दोनों इक्वेशन देखो, समझ में आया आपको? -j क्यों लिखा है? लेफ्ट साइड, लेफ्ट को माइनस लिया, राइट को प्लस, तो इस डायरेक्शन में इसका इनिशियल मोमेंटम 0 था, इम्पल्स आया लेफ्ट साइड -j, और चलेगा इधर ही, मुझे मालूम है -m2v1 हो जाएगा वेलोसिटी, तो फाइनल मोमेंटम इज -m2v1। यस सर। हेलो। हाँ सर, समझा। तो यहाँ पे उठा के डाल दो, तो j का वैल्यू m2v1 इधर आ गया, उधर ले जाओ, इधर माइनस तो उधर प्लस हो जाएगा, तो m1v1 प्लस m2v1, v1 कॉमन, m1 प्लस m2 हो गया। j का वैल्यू m2v1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, m1v माइनस m2v1 इज इक्वल टू m1v1, तो m1v1 प्लस m2v1 इज इक्वल टू m1v, तो v1 इज इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो सही है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? सर टेंट का मतलब क्या है? टेंट नहीं, टॉट है, TAUT, मतलब खिंच जाता है, अभी तो स्लैक है, TAUT। क्लियर ना? एक बॉल है, h हाइट से गिरा, राइट, एंड हॉरिजॉन्टली बाउंस होता है, so you have to find the velocity with which it bounces. हिंट दे रहा हूं, force or impulse always acts normal to the surface, hence it will have no effect in horizontal direction, sorry, along the incline, it will have no effect along the incline। ये लॉजिक यूज करना आपको। I'll give you 3 minutes, solve।